Am I audible? Generating function, let's start. Let A0, A1, A2 up to so on be sequence of real numbers. Then function of variable. Here in your notes, they are using variable as, then we can use as also. Otherwise, we can use x or y, any variable, okay? We need to mention, Okay, ma'am. here is this variable, okay? Function of variable x is defined as a s is equal to a0 plus a1s plus a2s s square plus a3 into sq and plus up to so on. We can say this is a series, right? Yes, Are you ma'am. getting me? Yes, ma'am. If this series converges in interval from minus s0 to s to positive s0, or we can define it as if above series converges in interval minus s0, means we are taking some value of variable. Then as this series is said to be, I'll explain you again, okay? Is said to be Okay. generating function. And the series also a type of power series. So we can mention this power series also, okay? Do you remember power series, or shall I explain you like in brief this point power series? Do you remember? Ma'am, no, ma'am. Okay, I'll explain you, okay? Okay, ma'am. So what it mean by generating function means if we have sequence of real numbers and using a variable, if we define as a sequence, sorry, in series, okay? Like by using Okay. these real values, okay? Because the sequence of real numbers means these all are real numbers. And in stochastic process, we take only positive, means no negative integer, no negative values. So here we will take accordingly. And if we can express by using these positive, these real numbers, okay, and express by using a variable which they'll give you, okay. So if we Okay. express a series by using these real numbers and variable s, or they can give you variable x, y, or any.
Okay, then this series is said to be generating function if, means not in all cases, if this converges in some interval. Okay, if it diverges for all, then we can't say. Okay, if this Okay, converge ma'am. in some interval, means define some interval of like values of as they'll give you, we'll check that, and if this converges, then we can say this is generating function. Are you getting me? मैम कन्वर्ज ये सीरीज कन्वर्ज हो रही है इसका मतलब क्या हुआ? Converse, diverse, you don't remember? I'll tell you, okay, what it mean by converse or diverse. Okay. ओके मैम. ओके मैम. So now you got this mean. I'll tell you in brief meaning of convergence or and divergence also, and also power series. Okay. First ओके. of all, I'll explain you. You remember meaning of sequence and series? Do you remember? यस मैम. Okay. Difference between sequence and series, you remember? नो मैम. Okay, okay, I'll tell you. First, I'll tell you. That is why I was asking you, you want from basics. That, okay. I'm going ओके. to explain you first meaning of sequence and series. Then I'll explain you what it mean by converge or diverge. Okay? ओके मैम. Divergence, convergence, ओके. divergence of the series. Then you will understand this well, easily. Okay? Generating function. ओके मैम. So let us understand first of all sequence. Do you remember AP and GP? यस मैम. Okay, okay. See, if we have, like if we arrange some numbers in a order, okay, by using यस comma मैम. sequence, if we arrange some numbers in a order by following a certain pattern, okay, by using comma, then this arrangement is said to be sequence. Like, if we have, for example, you will understand well, like we have numbers, like we have 1, 7, 5, 3, 9, 11. We have these numbers. Okay. If we arrange these numbers in certain order, like using either you can arrange in ascending or descending order, like we are arranging in ascending order. If we are using commas, okay, and this and this arrangement is following some a fixed pattern, like we are taking between each pair of consecutive numbers, the difference is 2. We can say this is the pattern. Are you getting ओके me? मैम. We यस can मैम. difference between two consecutive numbers. We can see we have 2. Okay. So if we arrange numbers by following some certain pattern, okay, either in ascending order or in descending order, by using comma, then we say this arrangement is said to be sequence. Okay. Or they ओके can मैम. give you like infinite numbers also. In infinite case, they'll give you already arranging in ascending or descending order. Like not only यस even मैम. or odd, like we can have like this. If you remember an set of natural number and up to so on. So its sequence will be 1, 2, 3, 4, and we need at least 3 terms and we can so. So this is sequence. And series, if we use plus sign or like this, one series is
Instead of comma, we use sign of addition or plus sign. Then we say this is series like this. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus up to so on. This is series. This is sequence and this is series. Yes, ma'am. Okay. So sequence is just arrangement by using comma, by following some certain pattern, and series is just sum of terms of sequence. Got it? Okay, ma'am. Now it's clear meaning of sequence and series? Yes, ma'am. Okay. And to find like this series or sequence converge or diverge, we need to find its nth term first of all. Okay. So how can we find nth term? Let us know. As you remember, how can we find like uh, sum of or nth term of AP or GP? So we'll find accordingly. Okay, ma'am. Like if we need to check this, if you have sequence of natural number, and you need to check the given sequence is convergent or divergent, then let us know how can we check. First of all, you need to find its nth term. Okay, ma'am. So its nth term, you remember, we can see here, this is AP. Ma'am, it's 1. Yes. So its first term is 1 plus n minus 1 into D is also 1. Yes, ma'am. So its nth term will be n, right? Yes, ma'am. Or we can find directly also. I use formula just for explanation, but we can use directly also. Now we need to find limit. Limit n tends to infinity because we have infinite number of sequence, right? Yes, ma'am. Here n tends to infinity. We'll put Infinity. limit and we will take an here. If this is finite, then sequence is convergent. Or if it is infinite, then it is divergent. Okay, Okay. convergent Okay, or ma'am. finite, or for infinite, it is divergent. Okay. Okay, ma'am. Now let us know about the power series. If you have any doubt, then you can ask me again, okay? Yes, ma'am. Power series. Here we are using this word series. It means we have sum of terms. Okay. So if we Okay, have ma'am. this form like summation, this sign, this symbol represents sum of whole terms. Remember, Yes, ma'am. from n is equal to 0 to infinity, an and if we have any variable, if we are using x or any other variable, then we can take power n of that. Here we are using variable x. Yes, ma'am. Then we can express this as a 0 and
x to the power 0 plus a1 x a2 a3 into x cube plus up to so on. Okay, ma'am. Okay, up to infinity. So this form is said to be power series. Okay, so obviously Okay, we ma'am. have this form in generating function. Remember, only we are Yes, ma'am. using variable s in a state of x. Yes, ma'am. That is why we are saying this power series. Okay. Now you got? Yes, We can ma'am. say this. Ma'am, Yeah, yeah, tell. I have one doubt कि if power series में summation goes till infinity, but Yeah. here it is written कि if above series converges in interval minus s naught to s naught, then as is said to be generating function, and आपने बोला convergent होगा तब finite series होगी, तो ये कैसे? मीन्स कि हमें एक इंटरवल में फाइनाइट वो लेना है फाइनाइट, ठीक है। यानी कि हम x की कुछ सर्टेन वैल्यूज होंगी। सर्टेन वैल्यू Okay. मीन्स कि हम फाइनाइट वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक ओके है। मैम, तो मैम मतलब जनरेटिंग फंक्शन में ये ए एस इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एस गोज अप टू इन्फिनिटी। देखो यहां तक तो ये इन्फिनिटी लाइक ये तो है, बट ये किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कन्वर्ज करना चाहिए, सारा का सारा नहीं। क्योंकि पावर सीरीज है तो ऑब्वियसली अप टू इनफाइनाइट है, बट किसी लाइक जैसे कि हम बात करें कि भाई एस की वैल्यू -2, मतलब इस तरह से ये डिफाइंड है कि इस इंटरवल में अगर ये कन्वर्ज करती है, ठीक है, तब तो हम इसको कहेंगे जनरेटिंग फंक्शन है। अगर मान लो हमने एस की वैल्यू एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमने ले ली, ठीक है, जो भी वो क्वेश्चन हाँ में देंगे, ठीक है। हाँ। अगर वो उस इंटरवल में भी कन्वर्ज नहीं करती, ईच एंड एवरी कंडीशन में वो डाइवर्ज ही करती है, तो फिर वो जनरेटिंग फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, तब वो सिर्फ पावर सीरीज होगा पर जनरेटिंग फंक्शन नहीं हाँ, होगा। सिर्फ पावर सीरीज होगी उस कंडीशन में, ठीक है। तो वो ओके मैम। उस इंटरवल को देंगे कि क्या ये इस इंटरवल में ये जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। ओके मैम। तो वो फिर हम टेस्ट करेंगे, ओके, ओके मैम। उस इंटरवल के यस लिए। मैम। अब ये क्लियर हुआ? हम्म, यस मैम। गुड। मैं इसके नोट्स भी दे दूंगी, ठीक है, अलग से। ये तो हमने अभी ओके ऐसे मैम। ही ओरली ज्यादा समझा है, रिटर्न में भी है नहीं यहाँ, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे मीनिंग ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंस सीक्वेंस एंड सीरीज समझाना था, ठीक है। यस मैम। हाँ, और कब ये कन्वर्ज करेगी, क्योंकि कन्वर्ज और डाइवर्ज करने के भी कई मेथड है, वो डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ हमारी सीक्वेंस या सीरीज क्या है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ये हमारा यही हो, हमारा डिनोमिनेटर में भी हो सकता है कोई एक्स, लाइक जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो उसकी फॉर्म तो यही होगी, है ना। बट अभी हम फर्दर हाँ जी। क्वेश्चंस में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक। ओके मैम। हाँ, तो बस मीनिंग हमें ये माइंड में रखना है कि अगर ये हम जो लिमिट इसकी फाइन करेंगे एनाटॉम की, तो वो हाँ फाइनाइट जी। आएगी तो कन्वर्ज करेगा, इनफाइनाइट जब भी हम टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि ना इसके लिए जो इंटरवल वो देगा जो भी कुछ मेंशन करेगा, तो उसमें हम चेक भी हाँ जी। करेंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ, तो आगे बढ़े फिर। हम्म, यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक है। हम्म, इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो कि जो ऊपर हमने अभी जनरेटिंग फंक्शन किया है, ठीक है, तो अगर हाँ। हमें उसके थ्रू हमें ये वैल्यूज अगर फाइंड करनी हो, ठीक है, अगर जो हमारी A0 A1 ये सब वैल्यूज अगर हमें ये फाइंड करनी हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। जो नेक्स्ट है ना टॉपिक नाउ, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट k टाइम्स एंड पुटिंग s इज इक्वल टू 0, देन वी कैन जनरेट द वैल्यूज ऑफ ak फ्रॉम as, ओके। ठीक है। तो अगर हमें as गिवन है, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन गिवन है, और हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, वैल्यूज अननोन है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। रिमेंबर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यस मैम। ओके, दैट्स गुड।
तो ए एस हमने एक्सप्रेस कर रखा था, ये एक बार फिर से हम ले लेते हैं ए एस को। A0 प्लस A1 इंटू एस प्लस A2 इंटू एस स्क्वायर प्लस A3 इंटू एस क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब ये जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। पहले तो हमें ये यस मैम। वो अगर हमसे वैल्यूज फाइंड करवाएंगे तो वो ऑलरेडी गिवन होगा कि ये जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। यस अगर मैम। सिर्फ पावर सीरीज गिवन होगी तो वो टेस्ट करवाएंगे कि जनरेटिंग फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यस ऑलरेडी मैम। गिवन है और हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके मैम। देन टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ए के, या के की जगह पर वो कुछ और भी दे सकते हैं, फिर जो के गिवन है तो ऑब्वियसली वो एग्जाम में के देंगे। अदरवाइज वो यहाँ पे कुछ और भी यूज करेंगे तो हम वही फिर डिफरेंशिएशन भी उसी लाइक अगर वो एन टाइम है, यहाँ पर ए एन है, तो हम एन टाइम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे के है तो हम केथ ऑर्डर का हम फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑफ ओके ए मैम। के। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो फाइंड वैल्यूज ऑफ ए के, डिफरेंशिएट ए एस दिस जनरेटिंग फंक्शन के टाइम्स, और हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फाइंड केथ डेरिवेटिव ऑफ ए एस एंड पुट एस इज इक्वल टू 0 एंड पुट एस इज इक्वल टू 0। एस मीन्स हम ए की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 1 अपॉन फैक्टोरियल के केथ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए एस। हाँ हाँ बोलो। यस मैम। कुछ पूछना था तुम्हें, और यहाँ पर नो हम नो मैम। एस इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हमें जनरेटिंग ओके। फंक्शन फाइंड करना है तो हम इस वे में ले लेंगे, जो भी हमें उसमें वैल्यूज गिवन होगी और वेरिएबल डिफाइंड हो रखा होगा, तो हम इस फॉर्म में पहले इस सीरीज की फॉर्म में ले लेंगे पहले इसको, और फिर हम टेस्ट कर लेंगे कि ये कन्वर्ज कर रही है या नहीं जो गिवन इंटरवल में है। और अगर हमें ये जनरेटिंग फंक्शन गिवन है और वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। ये बोथ कंडीशन क्लियर हो गई। यस मैम। अब करते हैं हम प्रोबेबिलिटी जेनरेटिंग फंक्शन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के सारे बेसिक्स तुम्हें अच्छे से क्लियर हैं? अगर कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं करा दूंगी। ओके मैम। अगर कुछ भी टॉपिक कर रहे हो या क्वेश्चंस कर रहे हो, कहीं भी लगे कि मुझे कोई भी बेसिक क्लियर नहीं है तो बता सकते हो, मैं इमीडिएटली करा दूंगी, क्योंकि बेसिक्स के थ्रू ही फिर हम एडवांस कर पाएंगे। यस मैम। प्रोबेबिलिटी जेनरेटिंग फंक्शन। मैम ये ऊपर के टाइम्स डिफरेंशिएट करना, के डेरिवेटिव निकालना सेम ही बात है ना, बट डिफरेंशिएट के टाइम्स करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम के डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। यस एग्जैक्टली। हम जो ओके। ये रिमेम्बर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यस मैम। तो वही यूज कर लेंगे, ठीक है।
हाँ जी। क्वेश्चन हम करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वहां पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके। ओके मैम। यस मैम। हम ऐसा करेंगे कि जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं, जैसे हमने मान लो ये जनरेटिंग फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, ये कंप्लीट कर लिया। अब इससे रिलेटेड तुम यस क्वेश्चन देखा करना कि पास्ट पेपर्स में या कॉलेज में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं इससे रिलेटेड, तो हम इस टॉपिक के जस्ट बाद हम वो कर लें, क्योंकि साथ के साथ करते जाएंगे। मैं ऐसा नहीं है कि पूरी यूनिट कर ली फिर उसके क्वेश्चंस करने बैठे। जिस टॉपिक को कर रहे हैं तो साथ के साथ तुम पहले ही पॉइंट आउट कर लेना कि इससे रिलेटेड मेरे पास्ट पेपर्स में या कॉलेज से मिले हुए क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो टॉपिक के साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम जो क्वेश्चन नोट्स में होंगे और बाकी जो मैम ने हाँ, बुक्स दे रखी है कॉलेज की मैम ने, उसके ठीक है। क्वेश्चंस हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है। मैम फिर पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन लास्ट में कर सकते हैं, बिकॉज उसमें ठीक है। ढूंढना ठीक है। मुश्किल हो जाएगा ठीक है। ठीक है। टॉपिक वाइज। ठीक है, पहले बुक में से और नोट्स में से कर लेना। और फिर जब ओके हम मैम। टॉपिक कर लेंगे, जब सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, तब फिर तुम पास्ट पेपर करने बैठोगे तो पहले खुद कोशिश करना ऑब्वियसली, क्योंकि हम सारा कुछ कर चुके होंगे। फिर जहां डाउट्स आएंगे तो मैं डाउट सेशंस रख दूंगी, ठीक है। ओके मैम। हम्म। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, क्योंकि यूजुअली हम जब प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम फाइंड करते हैं तो हम एक्स को ही रैंडम वेरिएबल यूजुअली लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे हम लेट। अच्छा, तो मैं ये रैंडम वेरिएबल वगैरह हम कैसे चूज करते हैं, क्या मीनिंग है इनका, ये सारा कुछ क्लियर है तो मैं अच्छे से। यस मैम। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके मैम। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। और हमें क्या करना है कि हम इनको कैसे ले रहे हैं, कि नॉन नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। नॉन नेगेटिव का मीन कि हम उसमें जीरो भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम। हम्म। वैल्यूज यूजिंग 0 1 2 एंड अप टू सो। तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैं भी साइड से तुम्हें एक वैसे तो मैं पता ही होगा बट फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा दूंगी। एक्स इज इक्वल टू, अगर हम के लेते हैं कोई भी वैल्यू, के की जगह हम ए या कुछ और वेरिएबल भी शो कर सकते हैं, मीन्स कि ये एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम प्रोबेबिलिटी को यस। कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ के। और यस के मैम। इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब यस मैम। इसका मीनिंग क्या है, ये यहाँ पर जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ऑलवेज यू नो वेरी वेल कि ये प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी के थ्रू ये ऑलवेज वन होता है। यस मैम। के इज इक्वल टू 0 टू अप टू इन्फिनिटी, जितनी भी हम इंफिनिटी। वैल्यूज लेंगे तो पी प्रोबेबिलिटी सम ऑलवेज वन होगा। यस मैम। अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, सॉरी, इफ वी रिप्लेस ए के इन फर्स्ट बाय पी के, यानी कि वहां पर हम क्या ले रहे थे, क्योंकि ये है फिक्स वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट ही है। यस मैम। वहां भी हम एक एक क्या ले रहे थे, कांस्टेंट ही था। तो अगर हम एक एक की जगह पर हम पी के ले लेते हैं तो वो जनरेटिंग फंक्शन की जगह पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओके वहां मैम। सिर्फ हम इंटीजर्स को यूज कर रहे थे, यहाँ भी इंटीजर्स हैं वही नॉन नेगेटिव, बट ये वैल्यूज किसकी हैं, ये यहाँ पर रैंडम वेरिएबल हम लाइक यहाँ हम प्रोबेबिलिटी के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कुछ हम यस फाइंड कर मैम। रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी के लिए, इसलिए जब हम एक एक को पीके से रिप्लेस करेंगे तो ये जो जनरेटिंग फंक्शन बिकम्स प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और हम उसको ए एस की जगह फिर हम पीएस ले लेंगे वहां वेरिएबल उसको, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन को। ओके मैम। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, इफ वी रिप्लेस
ए के बाय पी के इन इक्वेशन 1। एक बार हम अपने इक्वेशन 1 चेक कर लेते हैं। यस हियर। ठीक है, तो ए की जगह हम पी ले रहे हैं तो एवरीवेयर हम यहाँ पे भी पी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तो हम ले ही रहे यस हैं। मैम। हाँ, लेफ्ट साइड भी, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ले रहे हैं तो हम यहाँ भी पी ले लेंगे। तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी जीरो प्लस पी वन इंटू एस प्लस पी टू इंटू एस स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो। और यस मैम। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं समेशन सिंबल यूज करके। समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी पी के इंटू यस मैम। is said to be probability generating function। ये क्लियर हुआ? यस मैम। तो अगर हम यहाँ पर s इज इक्वल टू 1 ले लें, ठीक है, s इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि पीएस क्या है, पीजीएफ है। ठीक है, और इसको हम, अच्छा ये ट्रांसफॉर्म वगैरह ये सब तुमने कर रखे हैं या फिर मैं करवा दूं? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ये जैसे। ट्रांसफॉर्म, देखो, ट्रांसफॉर्म जैसे। हाँ चलो हाँ मैं जी। करवा दूंगी, कोई बात नहीं। अभी क्या है यहाँ पर, मैं जैसे कि हम यहाँ P1 फाइंड करें। P1 मतलब कि एस इज इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यस ये मैम। इस प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। इफ, कैसे, इफ एस इज इक्वल टू 1, तो ये क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू समेशन ए इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और ये पी के इंटू, ये तो 1 टू द पावर के आ जाएगा तो ये 1 ही रहेगा। इसको हम दिखा भी सकते हैं बट मैंडेटरी नहीं है, हम डायरेक्ट भी ये ले सकते हैं। यस मैम। इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एट, ठीक है। और ये क्या है, ये 1 है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस मैम। ये दिस इज मेंशन, इक्वल टू 1। हाँ, हम ये मेंशन भी कर सकते हैं सिंस ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी and pk is equal to 1, hence p at s is equal to 1 is equal to 1। इट मीन्स कि अब हमने ये दिखा दिया कि हम एक सर्टेन वैल्यू यूज कर रहे थे एस की। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस अभी हमने जनरेटिंग फंक्शन में किया कि वो एक इंटरवल दे देंगे, उसमें वो कन्वर्ज करती है या नहीं करती। अब हमने एक वैल्यू ले ली एस की 1। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है, ये एक सर्टेन वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो इट मीन्स ये यस मैम। कन्वर्ट कर रही है। इसी तरह से हम करेंगे। ठीक है, ये समझ ओके आया? मैम। मैम जैसे P1 इज इक्वल टू 1 इसका मतलब ये है कि कन्वर्ज कर रहा है। हाँ, ओके। अच्छा यहाँ जैसे पे कि वो ही हो अगर गया जैसे हाँ हाँ बोलो। आपने इंटरवल ये लिखवाया था इफ अबव सीरीज कन्वर्जेस इन इंटरवल माइनस एस नॉट हाँ टू एस नॉट देन ए हाँ एस इज सेड टू बी जनरेटिंग फंक्शन। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू 1 एक इंटरवल हो गया हाँ और उस पे P1 हमारा 1 आ रहा है तो मतलब वो कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि हाँ, उसकी फाइनाइट वैल्यू है। यस, ऐसा।
हाँ, ऐसे ही ओके हम मैम। चेक करेंगे फर्दर, और भी जो वैल्यूज देंगे ना क्वेश्चन में, तो वो ऐसे ही चेक करवाएंगे कि भाई हमें उस एक पर्टिकुलर, या नहीं, या तो इंटरवल दे दिया, ठीक है, जैसे मान लो कि हमें इंटरवल दे दिया -2 टू +2। मैम इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शंस होते हैं वो हमेशा जनरेटिंग फंक्शन होंगे? ऐसा होगा क्या इसका मतलब? देखो, ये अगर कन्वर्ज, हाँ, प्रोबेबिलिटी में तो होगा ये, ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करेंगे ना, क्योंकि कि जब हम सम फाइंड करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सम हमें पता ही है पहले से ही, वन ही ठीक है। होता है हमेशा। हाँ, हाँ जी। तो ओके मैम। इसलिए तो जैसे कि हमें अगर सिर्फ जनरेटिंग फंक्शन के लिए उसने बोल दिया कि भाई हमें इसमें चेक करना है, तो इसमें हम एक वैल्यू ले सकते हैं, -2 और 2 के बीच में 1 वैल्यू ले ली हमने, या 0 ले ली, राइट, इस इंटरवल में, ओके मैम। ठीक है। वो इंटरवल हाँ वो भी जी। क्वेश्चन में दे देंगे, जैसे जो भी इंटरवल देंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसमें से कोई एक वैल्यू चूज कर लेंगे, और उस पर फिर हम उस जो सीरीज को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ, यस अब मैम। ये क्लियर हुआ। हाँ जी। मैम जैसे यहाँ पे एस इक्वल टू जीरो रखेंगे तब हमारा फिर पी जीरो जीरो आएगा, ऐसा ना? ये तो हमने उसके लिए किया था जनरेटिंग फंक्शन के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटी के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग लेंगे हम, ठीक ओके है। मैम। हाँ ओके। हाँ, तो जनरेटिंग फंक्शन के लिए हम लाइक उसके रूल्स फॉलो करेंगे, बट प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन में जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड रूल्स हैं उनको भी साथ में लेके चलेंगे, यस मैम। ठीक है। हम्म, हाँ जी। चलो अब हम, अच्छा ये बताओ कि नेक्स्ट हमें समझने के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, तुम्हें पता है, याद है, एक्सपेक्टेशन यस या मैम। एक्सपेक्टेड वैल्यू, यस मैम। ठीक है, चलो करते हैं फिर। क्योंकि ये सारे बेसिक्स अच्छे से, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, और उनके थ्रू हमने मीन, वेरिएंस और ये सारा कुछ कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये तुम्हें पहले से ही पता है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं याद है, जैसे कि हमने किया तो होता है, बट थोड़ा सा ब्रशअप करने की नीड होती है, तो अगर तुम्हें नीड है ब्रशअप करने की तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज फिर हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। मैम हम आगे बढ़ लेते हैं, इनकेस मुझे याद नहीं आ रहा होगा तो मैं पूछ लूंगी बीच में। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। एक बार हम रिज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि 40 मिनट्स के बाद ये ओवर हो जाएगी मीटिंग, ठीक है। क्योंकि ओके मैम। प्रो नहीं है, मैं प्रो में सून ही तुम्हें एनरोल कर लूंगी, ओके। ओके मैम। अभी हम रिज्वाइन कर लेते हैं, फिर इस रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं। ओके मैम।